हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे we are going to study standard 10th maths part 2, that means geometry's third chapter, circle. From that third chapter, circle, we are going to study that problem set 3. Now this problem set 3, so many sums are there, so again we are dividing this problem set 3 into two parts. तो पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 to 12, जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 12 तक है, जो पार्ट 1 में हम लोग लेने वाले, एंड 13th वन इज ओमिटेड फॉर दिस ईयर. तो 14 to 25 जो सम अभी हम लोग को है वो हम लोग पार्ट 2 में लेने वाले. तो लेट अस सी दैट पार्ट 1, यानी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. सो हियर दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज द फिगर इज गिवन. In figure, M is the center of the circle. Then segment KL, this is KL, here it is L. So segment KL is the tangent segment. Here MK is equal to 12. So what is given here? This M is center, then segment KL is tangent. Now what is given? MK is equal to 12 and KL is 6 root 3. KL is 6 root 3. Then find, what we have to find here? First thing, find the radius of circle. तो फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड रेडियस. तो पहला रेडियस फाइंड करते हैं. देखो हाउ विल वी गेट द रेडियस. सो हियर इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, then by tangent theorem this ML is the radius of the circle and this is the tangent, therefore this angle is of 90 degree. Angle MLK is 90 degree. So here in triangle MLK, angle MLK is 90 degree. Reason? Tangent theorem. This theorem is a tangent theorem. So by tangent theorem this line is perpendicular to the radius, so we get 90 degree. Now use Pythagoras in this triangle. Here this MK is given 12 and this is given 6 root 3. Now find this radius of the सर्कल यानी ML, ये हम लोग को फाइंड करना है. तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है? MK, दैट इज द हाइपोटेनस. देयरफॉर MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर. रीजन? पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we get this one. Now substitute the values. अभी इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ. ये 12 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इज ML स्क्वायर प्लस दिस इज 6 रूट 3. तो 6 रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो. 144 इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करो इसका. 6 मीन्स 36 multiplied by this root of 3 means 3. So we get 144 is equal to ML square plus 36 3 is 108. So ML square is equal to 144 minus this 108. So we get ML square is equal to 144 minus 108 is 36. Therefore ML is equal to 6. तो ये आ गया अपना 6. रेडियस ऑफ सर्कल कितना? 6. So we get radius of circle is equal to 6.
यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है तो 6 यूनिट्स। देन सेकेंड पॉइंट व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसमें थर्ड में मेजर ऑफ एंगल के, ये जो एंगल के और एंगल एम हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री दिया है, देखो L इज 90 डिग्री। नाउ इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल LMK और MLK, angle L is 90 degree and this ML is equal to half MK. If you observe, this is 6 and this is 12, so half of the hypotenuse or LK is equal to, ये है √3/2 into this MK hypotenuse. So in which triangle this ML is half MK, तो ML is opposite to K, यानी K is 30 degree and therefore this triangle LMK is which type of triangle? 30, 60, 90 triangle. Therefore this K is 30 degree and angle means angle K is 30 degree and angle M is 60 degree, यानी side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse and this ML is opposite to 30 degree which is half the hypotenuse. So in this way we can solve this third one, in which we get angle K, angle M and radius of the. Now let us see fourth sum from problem set 3. What is given in that fourth sum? Here O is the center of circle and segment AB and AC are the tangent segment from point A, and AB is equal to R. This AB is equal to R, this OB is R and OC is R. AC is again R. Tangent segment drawn from exterior point are congruent. यानी in this quadrilateral ABOC all the sides are congruent, that means it is rhombus. And in a rhombus this angle ABO or OBA, this is 90 degree and this angle is 90 degree. Tangent theorem. So by tangent theorem ये दो angle 90 degree आता है. Then what we have to prove? It is a square. So given or to prove, whenever there is prove that, show that, right? Given and to prove. So what is given? O is the center of circle. O is center of circle. Second thing, segment AB and AC are tangents. Segment AB and segment AC are tangents. Then AB equals R. This segment AB equals R. Radius of circle is R. Then to prove, then what we have to prove? This quadrilateral ABOC is square. तो स्क्वायर के लिए क्या, पहले ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए and at least one angle is 90 degree, then it becomes square. तो स्क्वायर का कंडीशन ये है. So first we join this OB and OC. ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी. यहाँ पे फिगर में देखो, ये ज्वाइन करना पड़ेगा because it is not given in the book textbook. So first one we have to join or draw OB and OC. So here in figure AB equals AC, tangent segments
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग tangent segment ड्रॉ करते हैं, then these are congruent. Now AB is R, therefore AB equals AC equals R. Now OB and OC are again equal. OB equals OC equals R. That is radii of same circle. ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। Therefore, in quadrilateral ABOC, which AB equals OB equals OC equals AC equals R. Therefore, all sides becomes congruent, means quadrilateral ABOC is rhombus. All sides congruent, then it is a rhombus. But angle ABO equals angle ACO equals 90 डिग्री। ये दो एंगल 90 डिग्री है। रीजन है टेंजेंट थ्योरम। बाय टेंजेंट थ्योरम ये दो एंगल 90 डिग्री है, एंड देयरफॉर इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ रोम्बस, अगर रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री है, इज 90 डिग्री यानी राइट एंगल, देन इट इज स्क्वायर, and therefore this quadrilateral ABOC is square because it is a rhombus and two angles यानी ABO ACO दोनों 90 डिग्री है, then it becomes square. So in this way we can prove this quadrilateral ABOC is a square in fourth sum. So here that fourth sum is complete. Now let us see this fifth sum. In fifth sum, this figure is given here, circle with center T is there. In figure quadrilateral ABCD is parallelogram. Here what is given? This quadrilateral ABCD is parallelogram. You know the properties of parallelogram. Opposite sides are congruent and parallel, so it is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Then second, it circumscribe the circle with center T, यानी a circle is inscribed in that quadrilateral यानी parallelogram, that is given with center T, and this point EFGH are points EFGH are touching point यानी point of contact. And here AE is given. AE equals 4.5 and EB equals 5.5. Then find AD. तो AD हम लोग को निकालना है. So here what is given, right? AE is given 4.5 और EB दिया है 5.5. Now you know that theorem, that is tangent segment from exterior points are congruent. इसका मतलब अगर A एक्सटीरियर पॉइंट है तो AE इक्वल्स AH, दिस BE इक्वल्स BF, दिस DH equals DG, and this one means this CG equals CF. तो here ये हम लोगों ने क्या लिया 4.5, तो ये भी कितना आएगा 4.5,
ये 5.5 तो ये आएगा 5.5, ये हम लोग x लेते हैं और ये हम लोग y लेते हैं, बोथ आर इक्वल। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस थिंग्स। So first we use that theorem, tangent segments from external point are congruent। अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर हियर वी गेट AE equals AH. These are the tangent segment drawn from exterior point A, and therefore AE equals AH is equal to 4.5। ये दोनों हो गया 4.5। सिमिलरली ओ बाजू में जाते हैं, BE equals BF। सिमिलरली this BE equals BF, therefore BE equals BF equals 5.5। नेक्स्ट ये बाजू में अगर D हो, हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट लेते हैं तो DH और DG, DH equals DG। now let DH equals DG equals X unit, and here CG equals CF, ये भी दोनों इक्वल आएगा। ये लेट इट बी Y, तो इसको हम लोगों ने Y ले लिया। अभी आगे देखो क्या है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये कौन सा है? पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट आएगा तो AB और DC, यानी AB इक्वल्स DC, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हियर अपोजिट साइड्स, रीजन लिख सकते हैं हम लोग, अपोजिट साइड्स। नाउ तो AB कैन बी रिटन एज AE प्लस EB। AB को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EB इज इक्वल टू दिस DC कैन बी रिटन एज DG प्लस CG और GC। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू AE कितना है 4.5 प्लस EB इज 5.5 इज इक्वल टू DG दिया है X हम लोगों ने लिया है और ये Y। सो वी गेट द इक्वेशन X प्लस Y इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 और 8 10 हो गया है। देखो इक्वेशन 1। सेकेंड पेयर अपोजिट साइड का जो है AD इक्वल्स BC, ये सेकेंड पेयर लिया तो AD कैन बी रिटन एज AH प्लस HD इज इक्वल टू ये आएगा BF प्लस FC। तो AH है 4.5 प्लस x इज इक्वल टू ये है 5.5 प्लस y। तो x माइनस वाई, x और ये y मैं a साइड में लेके आता हूँ तो ये 5.5 और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4.5। सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व दैट इक्वेशंस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 उसको ऐड करना है, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये y गेट कैंसल, x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 11, therefore x is equal to 5.5, 11 by 2, x is equal to 5.5। now x अगर 5.5 मिलता है तो AD हम लोग को मिल जाएगा, therefore AD equals this AH plus HD
एच डी का वैल्यू है x, यानी 4.5 प्लस x मतलब 4.5 प्लस 5.5, ये सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज 10. तो AD इक्वल्स 10. सो इन दिस वे वी गेट AD इन दिस फिफ्थ सम. तो ऐसे हम लोग AD यहाँ पे निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3. सिक्स्थ सम में क्या दिया है देखो. हियर देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर M. दैट सर्कल टचेस द सर्कल विथ सेंटर N. ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर N है. टचेस दैट सर्कल इंटरनली, यहां पे टच करता है इन पॉइंट T. रेडियस RM, ये रेडियस RM ड्रॉ किया, दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल एट S एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 9 एंड 2.5. यानी छोटा सर्कल का रेडियस 2.5 है, बड़ा सर्कल का रेडियस 9 सेंटीमीटर है. फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग. एंड सो फॉर व्हाट वी हैव टू फाइंड 4 पॉइंट्स. तो पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, ये पहले हम लोग निकालते हैं. देखो तो MT, दिस MT अगर हम लोग ज्वाइन किया देन MT इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ द स्मॉलर लार्जर सर्कल. सो MT इज, T इज द पॉइंट ऑन द सर्कल और M अगर सेंटर है, M सेंटर है, T सर्कल पे है, तो हम लोग ज्वाइन किया देन इट बिकम्स रेडियस. MT इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. Therefore a रेडियस दिया है MT इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो वी गेट वन ऑफ द आंसर. तो MT यानी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 9 दिया है, मतलब 9 सेंटीमीटर. सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN. सेकेंड पॉइंट है MN इज इक्वल टू कितना. MN फाइंड करना है आप लोग को अभी. नाउ from figure what we can write, MNT, because this is the property of means theorem of touching circles. If two circles touches internally or externally, then their centers, the line joining their centers and the point of contact are collinear. ये तीनों एक ही लाइन में आना मांगता है. So here MNT. So MNT मतलब we get MT is equal to MN plus NT. That NT is the radius of smaller circle. ये जो है smaller circle का radius है. So here it is 9 is equal to MN plus NT is 2.5. So MN is equal to 9 minus 2.5. So we get 6.5. MN is equal to 6.5 centimeter. So in this way we get MN here. Now what we have to find? Find the measure of angle NSM. तो स्मॉलर सर्कल के लिए देखो, स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, दिस RM इज द टेंजेंट और ये रेडियस है, तो बाय टेंजेंट थ्योरम दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो ए एंगल आएगा 90 डिग्री. थर्ड अपना जो है एंगल NSM इज 90 डिग्री. रीजन लिखा टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम. नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्थ पॉइंट. क्या फाइंड करना है हम लोग को? रेशो ऑफ MS इज टू MS इज टू SR, ये फाइंड करना है. तो अपने पास अभी MS इज टू SR, तो पहले हम लोग MS फाइंड करते हैं और SR तो अपने आप मिल जाएगा फिर, और उनका रेशो फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल
MNS. Angle S is 90 degree. Therefore, by Pythagoras, what we can write? Mn square is equal to NS square plus MS square. So we get MS square is equal to Mn square माइनस NS स्क्वायर. तो ये Mn मतलब हम लोगों ने अभी निकाला 6.5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये NS यानी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का रेडियस. टू यूज द फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी यानी 6.5 प्लस 2.5 a प्लस बी और यहाँ पे 6.5 माइनस 2.5 तो ये बन जाता है 9, 6 प्लस 2 8 और ये 1 into this 6 minus 2 is 4. So 9 4s are 36 यानी ms square is 36 तो ms is equal to 6. अभी ये ms अगर 6 आता है तो ये कितना रहेगा 3 because rm is 9. Now rm is equal to or mr is equal to 9 centimeter. Therefore this rm can be written as ms plus sr. So 9 is equal to ms plus sr. Sorry, ms का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी. ms is 6 plus sr यानी sr is equal to 3. So ratio of what we have to find? ms is to sr. ms upon sr तो ms है 6 और ये 3 means 2 by 1. So ms is to sr is equal to 2 is to 1. So in this way we get the ratio ms is to sr. तो ये जो सिक्स्थ सम है इसमें हम लोगों ने क्या किया? mt यानी रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड किया. उसके बाद mn यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. अगर दो सर्कल टच करते हैं देन देयर सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर. देयर इज अ बिटवीननेस रिलेशन. देन एंगल NSM यानी टेंजेंट थ्योरम यूज़ किया. बाद में ये ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करके हम लोगों ने ये MS फाइंड किया. देन फाइंड MSR इज टू RSR. ये जो रेशो है. लेट अस सी दैट सेवंथ सम. व्हाट इज गिवन इन दैट सेवंथ सम? इन द फिगर सर्कल्स विथ सेंटर्स X एंड Y टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट Z. ये दोनों सर्कल एक दूसरे को Z में टच कर रहे हैं. देन अ सेकेंड, ये जो सेकेंड है AB, सेकेंड पासिंग थ्रू Z में से एक लाइन यानी सेकेंड विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उसको सेकेंड बोलते हैं. तो AB इज अ सेकेंड फॉर बोथ द सर्कल एंड इट टचिंग द लार्जर सर्कल इन B एंड स्मॉलर सर्कल इन A. देन प्रूव दैट. व्हाट वी हैव टू प्रूव? दैट XA पैरेलल YB. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. टू प्रूव what we have to prove? This XA parallel radius XA और segment XA parallel segment YB, ये हम लोग को प्रूव करना है. अभी प्रूफ में देखो कंस्ट्रक्शन दिया है. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया है. ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड सेगमेंट YZ. जो फिलअप है वो मैं रेड पेन से बता रहा हूं आपको. सो YZ. नाउ प्रूफ इज देयर. दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. सो आंसर इज ऑलरेडी गिवन हियर. We have to complete the fill-ups. Now by theorem of touching circles, ये देखो X, Z, Y, these are collinear point. So by theorem of touching circles,
पॉइंट्स एक्स जेड वाई आर डैश, दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे हम लोग को लिखना है दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। द नेक्स्ट वन, अभी देखो एंगल एक्स जेड, ये जो है देखो ये और ए अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल एक्स जेड ए, एंगल एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल विच वन, दिस बी जेड वाई। ये रीजन इज अपोजिट एंगल्स। रीजन दिया हुआ है अपोजिट एंगल्स, ये हम लोग को भरना है यहां पे। तो ये रेड कलर से मैं दिखाता हूं आपको, एंगल बी जेड वाई। नाउ लेट दिस एंगल्स एज ए, ये हम लोगों ने क्या किया अभी, इसको ए कंसीडर करना है दोनों को। तो ये मेजर हो गया ए और ये भी ए। तो एंगल एक्स जेड ए, therefore let एंगल एक्स जेड ए इक्वल्स एंगल बी जेड वाई इक्वल्स ए डिग्री। तो हम लोगों ने उसको ए ले लिया। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेगमेंट एक्स ए, ये लेफ्ट साइड का जो ट्राइंगल है इसमें देखो सेगमेंट एक्स ए इक्वल्स एक्स जेड। तो ये दो एंगल जो है एक्स जेड ए और एक्स ए जेड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएगा। सो रीजन भी लिखना है इसका। नाउ सेगमेंट एक्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड। एक्स ए और एक्स जेड कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे रीजन लिखना है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों रेडियस आ गया, एक ही सर्कल का रेडियस है दोनों, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। द नेक्स्ट वन इज, अगर ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो ये हो गया विच एंगल, सॉरी विच ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो बेस एंगल है ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, एंगल एक्स ए जेड, देयरफॉर एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स जेड ए, बट एंगल एक्स जेड ए is equal to a, therefore this is again a. Here reason is given isosceles triangle theorem. Isosceles ट्राइंगल थ्योरम, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अभी आगे सिमिलरली हम लोग को वो ट्राइंगल में भी यूज करना है। ये देखो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, therefore these two angles are congruent by isosceles triangle theorem. The next one, therefore similarly we get which segment, segment YB is congruent to YB congruent to YZ। तो यहाँ पे भरना है हम लोग को segment YZ, and reason is already given, these are the radii of सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो वो भर दिया हम लोगों ने वहाँ पे, रीजन लिख दिया। अभी इसमें अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है, देन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो हियर एंगल बी जेड वाई, ये जो बी जेड वाई है और ये वाई बी जेड, so angle BZY is congruent to angle, यहाँ पे हम लोग को फिल अप करना है
एंगल वाई बी जेड इज इक्वल टू ए, ये भी ए हो गया। रीजन सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, यहाँ पे रीजन आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नाउ ये जो हम लोगों ने 1 इसको 2 और इसको 3 दिया, सो फ्रॉम 1 to 3 ये एंगल्स देखो, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन और दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, तो ये दोनों जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट बन गया। फिर देखो ए ए फ्रॉम 1 to 3। नेक्स्ट स्टेप अपना है फ्रॉम 1 2 and 3, दिस एंगल एक्स ए जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये भरना है वापिस, एक्स ए जेड वाई बी जेड, एंगल वाई बी जेड, एंड दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, therefore this एक्स ए पैरेलल वाई बी, therefore segment एक्स ए parallel segment YB, reason is which angle? Alternate angle test. So using this alternate angle test we can prove this segments are parallel and we can complete this activity. ये जो activity दी है 7th one, तो ऐसे ये एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। 8th सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3। हियर व्हाट इज गिवन, सर्कल विथ सेंटर x एंड y, ये जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर है x, द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका सेंटर x और बड़ा सर्कल है उसका सेंटर है y। द सर्कल्स विथ सेंटर x एंड y टच इंटरनली एट पॉइंट z, ये जो z है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों का, दैट टच ईच अदर एट z। देन नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, सेगमेंट BZ, ये जो BZ है दैट इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट A। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, प्रूव दैट सेगमेंट AX parallel BY. So what we have to prove? Segment AX parallel segment BY. Then proof. Draw x y z, draw a line y z, y z हम लोगों ने ज्वाइन किया तो x उस पे आएगा, therefore we get y x z, y x z means touching circle, so theorem of टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल ये जो सेंटर से और z यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये एक लाइन में आने वाला है, तो ये एक लाइन हो गया। देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अभी ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका जो ये ax रेडियस है, xz रेडियस है, सो इन ट्राइंगल axz, इन ट्राइंगल axz, this AX is congruent to XZ. Here reason radii of small circle or smaller circle, and therefore which angles are congruent? Angle XAZ is congruent to angle XZA. This is our statement number 1, and here isosceles
ट्राइंगल थ्योरम, हम लोगों ने क्या किया, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम यूज किया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये जो दो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप, ये जो बड़ा ट्राइंगल है देखो वाई बी जेड, उसमें यूज करो इन ट्राइंगल वाई बी जेड, ये जो यहाँ पे देखो वाई बी जेड, तो ये जो बी वाई और ये वाई जेड अगेन रेडिया ऑफ द लार्जर सर्कल, तो ये जो एंगल है जेड और ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको जेड लिखते हैं खाली, एंगल जेड, तो ये जेड कॉमन आ जाएगा। फिर इन दिस ट्राइंगल अगेन दिस बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड, अगेन दीज आर द रेडियाई ऑफ लार्जर और बिगर सर्कल, ये बड़े सर्कल का रेडिया है, एंड देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम व्हिच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल YBZ is congruent to angle Z again, this is second, here isosceles triangle theorem, तो ये थ्योरम हम लोगों ने यूज किया। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, ये देखो 1 क्या है, ये जो XAZ है कॉन्ग्रुएंट टू Z और YBZ है कॉन्ग्रुएंट टू Z, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्ग्रुएंट आ गया, देयरफॉर एंगल XAZ कॉन्ग्रुएंट एंगल YBZ, ये देखो XAZ मतलब ये एंगल, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं और ये ट्रांसवर्सल लिया, then these are the corresponding angle, therefore by corresponding angle test, therefore what we can write, AX segment AX parallel segment BY by corresponding एंगल टेस्ट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों पैरेलल हो गया, तो इस तरह हम लोग ये 8th सम में इजीली प्रूव कर सकते हो। तो लेट अस सी दिस 9th सम, इन 9th सम व्हाट इज गिवन हियर, लाइन L, ये जो लाइन L है इट इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O सेंटर दिया है, एंड इट इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट OP, मतलब ये जो OQ इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है तो OQ इक्वल्स QP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गया। RS इज अ कॉर्ड थ्रू Q सच दैट chord RS is parallel to this line L, then RS is 12. If RS is equal to 12, in this figure, if RS is equal to 12, then find the radius of circle. Then radius क्या है ये हम लोग को find करना है। Let the radius be R. Let the radius of circle be R. अगर रेडियस हम लोगों ने R लिया, then this OP is the radius, तो OP क्या आ जाएगा R, therefore OP equals radius यानी equals R. Q is the midpoint of OP, and therefore this OQ is R upon 2. तो we get OQ is equal to R by 2. ये हम लोग को मिलेगा R by 2. Now join this OR. This is our first point. Second point, join OR. OR अगर हम लोग ज्वाइन करते तो OR कितना आएगा, OR is the radius of circle again. This is R. ये R आएगा. So here radius of circle R, ये R by 2, half of the radius ये R.
So OR is equal to R. Now this third point, OP perpendicular line L, because tangent theorem. Because of the tangent theorem, that angle is 90 degree. But RS parallel this line L, therefore RS is again perpendicular to, therefore angle Q is 90 डिग्री. यानी OQ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, OQ परपेंडिकुलर RS, therefore OQ परपेंडिकुलर RS. अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन में एक को अगर परपेंडिकुलर निकाला तो लाइन दूसरे को भी परपेंडिकुलर रहेगा, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया. नाउ आवर 4 पॉइंट इज, if we draw the perpendicular from the center, then it bisect the chord. Perpendicular property A, property of chord drawn from center to chord, bisect chord. Now RS is given, therefore this RQ is equal to half RS. So RQ is equal to half multiplied by RS. 12 दिया है, तो RQ is 6. तो इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 6 हो गया, ये R/2, ये R. So use Pythagoras in this triangle. Now fifth point, in triangle ORQ या OQR, ORQ एंगल Q 90 डिग्री है. सो बाय पाइथागोरस OR स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. रीजन इज पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू ये R बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 4 प्लस 36. तो मल्टीप्लाइड बाई 4, सो वी गेट 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 36 4 जा 144. सो वी गेट 4R स्क्वायर माइनस दिस R स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मतलब 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 144. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 3. सो वी गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 3 4 जा एंड 3 8 जा. सो 48 को हम लोग 16 3 जा कर सकते हैं. सो R इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट निकालो, 4√3 सेंटीमीटर या यूनिट जो कुछ दिया है वहां पे. सो रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज 4√3. नाउ लेट अस से 10th सम. व्हाट इज गिवन इन द 10th सम? ये फिगर दिया है देखो, उसमें मैंने ऑलरेडी जो ज्वाइन कर दिया है CP CQ. सो व्हाट इज गिवन इन दैट फिगर? सेगमेंट AB इज द डायमीटर. ये जो AB है ये डायमीटर है. सेगमेंट AB इज डायमीटर. Then next one is C is the center. Center C. Then line PQ is a tangent. Line PQ is tangent at T. This AP perpendicular PQ and BQ perpendicular PQ. Then to prove that
this CP segment CP is congruent to segment CQ. CP और CQ ये दोनों हम लोग को यहाँ पे congruent बताना है। तो देखो प्रूफ क्या है। Now let us see the proof. Here, what is given? Segment AP और डायरेक्टली AP लिखते हैं हम लोग। AP perpendicular PQ. Here it is given. Then this BQ perpendicular this PQ, that is also given. And this CT, अगर हम लोग CT जो ड्रॉ करते हैं, CT is perpendicular to PQ by tangent theorem. Tangent theorem से CT भी, therefore if three lines, this AP, CT और BQ, ये तीनों एक ही लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो तीनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। देयरफॉर दिस AP पैरेलल CT पैरेलल BQ, ये तीनों लाइन पैरेलल हो गया। नाउ ये तीनों अगर पैरेलल है, ये कोरोलरी ऑफ पैरेलल लाइन, दिस ये कौन सा रीजन है यहाँ पे? कोरोलरी ऑफ पैरेलल लाइन, ये यूज किया हम लोगों ने। इफ थ्री लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन देन दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पे देखो ये थ्री पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी है वो जो ओमिट किया है लेकिन फर्स्ट चैप्टर में, वो यूज कर सकते हैं हम लोग। सो विच रेशियोज आर इक्वल? देयरफॉर दिस PT अपॉन TQ, दिस रेशियो इज इक्वल टू ये, और ये AC अपॉन CB is equal to AC upon CB. Here property of three parallel line, ये property of three parallel line हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। So we get PT by TQ is equal to AC by CB. Now AC by CB, AC equals BC, but AC equals CB. Why? Radii of the same circle. These are the radii of same circle. एक ही इसका रेडियस है दोनों। Therefore, this ratio AC upon CB is 1, and therefore this PT by TQ is again 1. And this 1, that means PT equals TQ. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। रेशियो 1 मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये स्टेटमेंट नंबर 1। अभी ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। देखो इन ट्राइंगल CPT एंड ट्राइंगल CQT। देखो CPT CQT ये दोनों ट्राइंगल हम लोग कंसीडर किया। उसमें देखो ये सेगमेंट CT कॉमन आ गया, दोनों को ये कॉमन है। देयरफॉर सेगमेंट CT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CT, दिस इज कॉमन साइड, ये दोनों को कॉमन है। देन एंगल CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CTQ 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री। और ये जो PT सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TQ फ्रॉम 1। अभी हम लोगों ने प्रूव किया, देखो यहाँ पे ये PT TQ। देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स, देखो इसमें ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट? SAS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल CPT
is congruent triangle CQT by SAS test. अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है then their corresponding sides, therefore segment CP is congruent to segment CQ, corresponding sides of congruent triangles. So in this way we can prove that CP and CQ are congruent. ये दोनों congruent हम लोगों ने प्रूव किया. Now let us see this 11th sum. Draw circles with centers A, B, C having radius 3 cm and each circle touches the other two circles. यानी ये सर्कल ये दो सर्कल को टच कर रहा है, ये भी दोनों को टच कर रहा है, ये भी दोनों को टच कर रहा है. सो ईच सर्कल टचेस द अदर टू सर्कल्स. तो ये टाइप का फिगर अपना आना चाहिए. सो ये सेंटर्स हो गया A, B और C. इफ वी ज्वाइन द सेंटर्स अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ये सेंटर्स ज्वाइन कर दिया AB, ये AC और ये BC, तो वी गेट ट्राइंगल ABC. ये जो ट्राइंगल ABC है देखो, इसमें रेडियस हम लोग को दिया है तीनों का रेडियस दिया है. तो तीनों का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. तो इसका सपोज मैं ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देता हूं D, E और F. तो ये जो रेडियस है ये 3, इसका रेडियस, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3. तो AB कितना हो गया 6, BC कितना हो गया 6 और AC इज अगेन 6. यानी ABC ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. तो ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हो गया तो उसका A सेंटर लो और 3 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल ड्रॉ करो. B सेंटर लो 3 सेंटीमीटर का रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ करो. C सेंटर लो, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो उसका एक्सप्लेनेशन कैसा देना ये देखो. पहले A, B, C are centers of circle. Radius of each circle is 3 centimeter. Now in this figure what we can write, A, D, B. Reason, theorem of touching circle. दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं देन देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये सेंटर्स कोलिनियर है. देयरफॉर AD प्लस DB इक्वल्स AB, मतलब 3 + 3 इक्वल्स AB. तो AB हो गया अपना 6, AB 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली BC, यार B डैश E डैश C, सेम थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स यहां पे यूज किया हम लोगों ने वापिस. थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. तो ये BE प्लस EC इज इक्वल टू BC. तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो BC इक्वल्स 6. BC 6 सेंटीमीटर हो गया. अभी सेम AC हम लोग को निकलना है. तो A डैश F डैश C, रीजन थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. वापिस वही थ्योरम हम लोगों ने यूज किया. Therefore AF plus FC is equal to AF plus FC is equal to AC. So 3 plus 3 equals AC. So AC equals 6
सेंटीमीटर। तो वी गेट ए बी बी सी ए सी, ये तीनों साइड मिल गया। वी कैन ड्रॉ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हम लोग पेपर पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोग को पेपर पे कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग को क्या करना है, अभी वी हैव टू ड्रॉ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर साइड लेके इक्विलैटरल ट्राइंगल पहले हम लोग को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आफ्टर दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ बी एज अ सेंटर, बी सेंटर लो और रेडियस कितना, हर एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस लो। एक सर्कल सी पे रखो और ए पे रखो। सो इन दिस वे वी गेट द सर्कल्स टचिंग टू ईच अदर एंड हैविंग द रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो उसको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो वी विल सी दैट फिगर ऑन द पेपर। ये फिगर, एक्चुअल फिगर कैसा कंस्ट्रक्शन करना है वो पेपर पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11th सम फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 3। हियर व्हाट इज गिवन, दिस we find AB, the distance between the centers A and B. That AB is 6 centimeter, distance BC is 6 centimeter and AC is 6 centimeter. Now we have to draw the circles which are touching to each other. So first we have to construct triangle ABC of equilateral triangle ABC of side 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ दिस साइड BC बेस 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग बेस BC लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हो गया BC 6 सेंटीमीटर। नेम दैट सेगमेंट BC 6 centimeter. Now that point A is at a distance of 6 centimeter from B and 6 centimeter from C. तो take a distance of 6 centimeter in a compass. ये 6 centimeter है BC, तो यही distance हम लोग compass में लेते हैं। So it is 6 centimeter. So draw one arc with B as a center. Draw one arc and with C as a center draw another arc intersecting that arc. So here we get this point of intersection is our point A. Now join AC and AB. We get triangle ABC having side equilateral triangle ABC with side 6 centimeter. तो ये पॉइंट हो गया अपना A. So we have to draw the circles with center A, B and C and having radius 3 centimeter. So take a radius 3 centimeter in a compass. With B as a center, draw one circle. B center लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। So we get the first circle with C as a center. C center लेके एक सर्कल ड्रॉ करो। एंड A सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करो। So in this way we get 3 circles. Each circle touches the other 2 circles. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसमें गैप आ गया because of that instrument. अगर हिल गया थोड़ा भी तो उसमें फर्क आ जाता है। तो we get this circles. तो इस तरह हम लोग 3 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं using this concept. ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये भी 3, ये भी 3. So
here this construction or 11th sum is completed. Let us see 12th sum from problem set 3. तो 12th sum में क्या दिया है देखो, what we have to prove that any 3 points on a circle cannot be collinear, यानी कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करना है. तो A B C what is given, A B C are any 3 points on a circle. तो क्या प्रूव करना है देखो, प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी कैन नॉट बी कोलिनियर. ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मतलब ऐसा प्रूव करना है. प्रूफ what is given, A B C are any 3 points on the circle. Now join AB, BC and AC. So if we join this AB, BC, AC, we get which figure? So after joining AB, BC and AC, we get triangle ABC. Now what is the definition of triangle? Triangle का definition क्या है? 3 collinear points are joined, then we get the triangle, means the vertices of the triangle are 3 non-collinear points. Therefore by definition of triangle, points A B C are non-collinear points. If these are non-collinear points, therefore what we can write, A B C cannot be collinear. So using the concept of that definition of that ट्राइंगल वी कैन प्रूव दिस वन. और दूसरा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यू नो द थ्योरम, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी आएगा. तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी अगर आता है, देन ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 साइड, देन दीज आर कोलिनियर. तो वो मेथड भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या ये मेथड यूज कर सकते हैं. सो हियर दिस पार्ट 1 प्रॉब्लम सेट 3 पार्ट 1 is completed. We cover the sum number, means question number 3 to 12 in this part 1 of problem set 3. Dear friends, if you have any doubt in circle or in this problem set part 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर कोई भी डाउट है, then you can write in the comment box. I will definitely clear your doubts. And most important thing, if you like the videos, please don't forget to like and subscribe the channel. If we subscribe the channel, you will get the updates of the latest videos, and share these videos to your friends.